आज की वीडियो में मैं आपको अल्बानिया और मोंटीनेग्रो के बारे में तफसील से ट्रिप बताऊंगा, कैसे आपने ट्रिप जो है अपना प्लान करना है। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है ये। तो भाई आज है मेरा दूसरा दिन यहाँ पे। कल मैंने वीडियो ख़त्म की थी, उसके बाद मैं बस स्टॉप पे चला गया था। वहाँ जाके मैंने वही जो मैंने एक चॉकलेट वाला केक लिया था और कोक ली थी वो पी ली थी। उसके बाद मैंने भाई कोशिश की, मुझे कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिली वहाँ जाने के लिए, मुझे टैक्सी का 20-25 यूरो पे करना पड़ता। तो मैंने डिसाइड किया कि वहीं पे एक हॉस्टल है, तो मैंने वो हॉस्टल ले लिया और उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो भाई ये 25 यूरो में मैंने ये हॉस्टल लिया था। इस वीडियो के एंड पे मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो भाई ये थी मेरी कल की दास्तान। उसके बाद मैं थक बहुत चुका था, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो मैं हूँ भाई मोंटीनेग्रो के अंदर और सफ़र शुरू हो रहा है आज हाइकिंग का। पहाड़ी के ऊपर जाना है। ये यहाँ का भाई लोकल बाज़ार है, जैतून के तेल और जैतून बिक रहा है यहाँ पे। शायद ये इट्स लाइक व्हाट यू कॉल दिस काइंड ऑफ मार्केट, इट्स कॉल्ड वेजिटेबल और लाइक ट्रेडिशनल मार्केट, हाउ यू गाइस कॉल दिस? Usually just market. I mean, हाँ, जस्ट मार्केट या in this case, it's like open air market. Sometimes they are in kind of housing, राइट but राइट। usually it's market. I saw this kind of market in every country. Even we have as well. This kind of, I mean, Yeah, local food or like vegetables, like fruits. here is more popular. Mm-hmm. This kind of market is well, it's something that comes from the Turks. Like Ah, okay. everywhere the Turks have been, they have this tradition of market. Mm-hmm. But also in the rest of Europe, we have even is less. Right. Mm-hmm. And what they have a map, it's really helpful what they put the map here. You think so? I never use this kind of map. So let me see. Now we are. I think we are here. Yeah. We are down here. Yeah. And then We have to go. Where is number 32? 32, yeah. So we should go. So basically, left and then or right. But I wanted to check for. Just hold on a second. तो भाई ये है यहाँ का ओल्ड टाउन, जो बना था 1944 के अंदर। नहीं, 1944 के अंदर नहीं। हाउ यू रीड दैट? आई मीन इन द मिडल इज अ डिफरेंट अल्फ़ाबेट एंड Yeah. No. Well, it's a way to put months. मंथ्स। So we use Arabic numbers for the day and the year. हाँ, And राइट। Latin numbers for the month. That means 12. Sorry, 11. 11, So, yeah, I can read as well. yeah, so it's, So that's 1944, right? It's built yeah. by No, 1944. I think because there is a start, Ah, which is something related with the socialism. So it's Social- something from the older Yugoslavia. Probably it means that they liberated the town that day from the Germans during Right. the Second World War. right. But it's built by before, right? I think. Yeah, this town has been made by the Italians actually, Ah, okay. by the nations. Like it's So it's like an Italian style. You think so? sorry. It's like the style is Italian. Absolutely. Ah, okay. All right. Because I've never been in Italy, so If you come in Italy, you say, oh yeah, it's like Qatar. Because this was a strategic, right, right. for the fjord. It was a naval base, basically. Okay, जी चलो कुछ खरीदते हैं. You think how long it will take for us to I be don't there? know, but I just bought some food. That's it, yes. 9.5. What you bought? Just some pastries and that one, but this is, I think, the most expensive place I've been in Montenegro. Really? Yeah. तो ये थी जी थोड़ी सी बेकरी, छोटी सी, लेकिन यहाँ की चीज़ें जो हैं काफ़ी महंगी लग रही हैं. 1150, 1.5, 1.5, 3.5, 3.5, 333,
Yeah, it's really expensive. Right. Yeah, I can imagine that. Yeah, right. 1, 2, I understand, but 3, 350, it's Yeah, really no, too it's much. crazy. Like I didn't Yeah. realize that. So I have a friend today from Italy. What is your name? Hello, my name is Marco. Marco from Italy. Huh? Yeah, So we are today hiking together, guys. hopefully. I am a very slow mover, so let's see I can manage with you or no. Well, I will start it. तो भाई आज की मेरी वीडियो है हाइकिंग और हिच हाइकिंग पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ हाइकिंग के लिए, मतलब मैं पैदल चल के पहाड़ियों की चोटियों से होता हुआ एक टॉप के ऊपर जो है एक जगह है, वहाँ पे हम लोग हिच हाइकिंग करेंगे, यानी लिफ्ट लेके नीचे वापस आएंगे। ये 5-6 घंटे की वॉक है और उसके अलावा वहाँ से नीचे आने के लिए हमें तकरीबन, अगर हम वॉक करेंगे तो 2 घंटे चाहिए, अगर हमें गाड़ी मिल गई तो 30-40 मिनट में हम लोग नीचे आ जाएंगे। तो भाई वीडियो को एंड तक देखिएगा, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। भाई ये है विंडो जहाँ से मैं आया हूँ, आपको दिखाता हूँ व्यू यहाँ से कैसा है। और ये यहाँ से व्यू दिखाएगा कुछ इस तरह का। तो भाई ये है जी व्यू यहाँ का, आपको दिखा दूँ ज़रा। मैं हूँ इस वक्त ये वॉल के साथ, मैं सीढ़ियों से नहीं आया हूँ, यहाँ पे सीढ़ियाँ भी हैं, सीढ़ियों से भी जा सकते हो। ये नीचे आप देख सकते हो सीढ़ियाँ, लेकिन मैं सीढ़ियों से नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ दूसरे ट्रैक से, वो साइड से। तो भाई अगर आप ये सीढ़ियाँ यूज़ करते हैं तो आपको 8 यूरो पे करने पड़ेंगे। अगर आप मेरे वाले रास्ते से आते हैं जो ऊपर से होके आता है, द कॉर्नर जो है ओल्ड टाउन का, बाहर बाहर वाली साइड से, तो वहाँ से फ्री है। और वो रास्ता इन सीढ़ियों से वैसे भी आसान है, तो इसलिए मैंने वो रास्ता यूज़ किया है। तो वो नीचे वहाँ पे मेरा हॉस्टल है। तो ये है जी पूरा कतौर सिटी का व्यू, और ये स्टेट से हमने अभी ऊपर जाना है। चलो जी, सफ़र शुरू हो गया। ऊपर मज़ीद जाने के लिए आप लोग साथ साथ व्यू देखते रहो। और ज़रूरी चीज़ें ये थी भाई कि आप यहाँ पे आते हो तो अगर खाली कतौर रुकना है तो 2 दिन काफ़ी हैं, तीसरे दिन आप वापस जा सकते हो। अभी मैं 8 दिन के लिए हूँ यहाँ पे, आज मेरा दूसरा दिन है। कल मैं यहाँ आया था, कल कुछ ख़ास नहीं मैंने किया, थोड़ा सा चक्कर ओल्ड टाउन का लगाया था। एक दिन पूरा काफ़ी है इस जगह को घूमने के लिए, ऊपर आने के लिए। वहाँ पे वो भी है केबल कार भी, लेकिन भाई वहाँ आने जाने का जो सलूशन है ना, वो अभी तक मैं नहीं ढूंढ सका, तो नॉट श्योर। तो भाई साथ साथ व्यू भी इंजॉय करते जो, और बात भी कर लेते हैं थोड़ी सी। हॉस्टल जो है भाई पूपा, तो भाई ये है पूपा हॉस्टल। booking.com पे 9.2 की रैंकिंग है इसकी, और ये बिल्कुल ओल्ड टाउन के सामने है। हॉस्टल है जहाँ मैं रुका हूँ। 25 यूरो मैंने दिए हैं एक दिन के, तो 2 दिन के लिए यहाँ 50 यूरो मैंने पे किया है। क्या कमाल का व्यू है यार, देख सकते हो। मोंटीनेग्रो भाई 4 कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है, अल्बानिया, सर्बिया, बोस्निया और क्रोएशिया। ये चारों कंट्रीज़ इसके अराउंड हैं। दिस इज़ कतौर, मोंटीनेग्रो। एक्चुअली छोटी सी कंट्री है, इतनी बड़ी कंट्री नहीं है, छोटे छोटे शहर हैं। ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम कुछ ख़ास नहीं। अगर आप आते हो तो अपनी गाड़ी रेंट करनी पड़ेगी, अगर अकेले हो तो एंजॉय करोगे या ड्राइव करोगे। ये लेक नहीं है भाई, ये समंदर है, बे है, पोर्ट कह सकते हैं आपको। किसी ज़माने में इटालियन लोगों का यहाँ कब्ज़ा था, उन्होंने अपना यहाँ बेस बनाया हुआ था। तो यहाँ की जो ओल्ड टाउन है वो प्योर इटालियन है, इटालियन स्टाइल में बना हुआ है। तो भाई मैं बात कर रहा था अल्बानिया से, मैं 30 यूरो पे करके सीधा मोंटीनेग्रो आ गया था। बॉर्डर पे मैंने ऑलरेडी बताया है
किसी ने ना मुझे बुलाया ना पूछा, छप्पा मारा। अल्बानिया वालों ने तो भाई चेक भी नहीं किया, ऐसे ही बाहर जाने दिया, बस क्रॉस कर गए। लाइक साथ साथ ही हैं, कुछ ज़्यादा फासला नहीं है दोनों के चेक पॉइंट में, सिर्फ एक पार्किंग है और कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। तो भाई 6.5 घंटे में मैं मोंटेनेग्रो कोतोर पहुंच गया था। तो हॉस्टल मैंने गलती से बुक कर लिया। ख्याल रखना जो भी हॉस्टल बुक करोगे, ओल्ड टाउन के अंदर होटल या हॉस्टल, या ओल्ड टाउन के आसपास, लाइक 1000 मीटर 1500 फीट, लाइक दैट्स 2000 फीट तक, 3000 फीट तक आप चूज़ कर सकते हो booking.com से। इससे ज़्यादा का फासला मत करना। माइल्स में जाओगे तो होटल से ज़्यादा पैसे आपको टैक्सी में पे करने पड़ जाएंगे। सो मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा आपको कि आप इतने पैसे फजूल में पे करो। अभी तक मुझे कैंसिलेशन चार्जेस तो नहीं पड़े हैं। सांस फूल गई है यार। तो वो जहाज़ हैं भाई, यूरोप के आते हैं यहाँ ज़्यादातर, इटली, शायद कल शायद कोई एक बंदे मुझे मिले थे इंडिया के, वो थे पेरिस के से थे, वो पेरिस के थे या स्पेन के थे, मैं भूल गया हूँ यार। तो खैर बात कर रहे थे हम लोग जी, हॉस्टल ठीक ठाक है, दिखाऊंगा। उन्होंने भाई तौलिए वाला बैग एक दिया, तौलिया था उसमें, बेड शीट थी, पिलो कवर था और एक छोटा सा कंबल है, उसका कवर था, बस यही चीज़ें थी। और हॉस्टल में आपको दिखाऊंगा जाके वापस कैसा है। सुबह सुबह का टाइम था तो मैं नहीं बना रहा था वीडियो। तो भाई अगर आप अल्बानिया से इसका वीज़ा अप्लाई करते हो तो बहुत सादा और सिंपल जो है प्रोसेस है, बड़ी आसानी से आप लोग वहाँ से वीज़ा लेके आ सकते हो। बैंक स्टेटमेंट साथ ले आओ, होटल बुकिंग ले आओ, और क्या कहते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस और प्लेन टिकट, आपकी पासपोर्ट, वीज़ा, आईडी कॉपी और एनओसी लेटर। मैं प्रेफर करूँगा अगर आप पाकिस्तानी हो, इंडियन हो तो शायद इन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है। आप खाली पासपोर्ट कॉपी और ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल बुकिंग से भी काम चला सकते हो। 10点一刻，你们还能逛个1个小时。如果太晒，我就找地方坐。 तो पहुंच गया हूँ भाई दूसरे व्यू पॉइंट पे। ये साइड सिटी का व्यू दे रही है। वो भाई सब जो मेरे साथ आए थे वो खड़े हैं, देखते हैं अंदर क्या है, ऊपर क्या है। तो ऐसा माहौल है भाई यहाँ का। सूरज अभी अभी निकला है थोड़ी देर पहले ही, तो पहाड़ी की ओट में से देख नहीं सके। तो भाई ये शहर जो है ये इटली के लोगों के कब्ज़े में था, तो वो इसको कतारो बोलते थे। कतारो से कतौर का लफ्ज़ निकला है। और आपको सुन के हैरानगी होगी कि यहाँ की आबादी 13,510 है, मतलब इतने लोग यहाँ रहते हैं। और ये शहर जो है मोंटेनेग्रो का शहर है। तो इसके अलावा ये 5वीं सदी में जो है ये डिस्कवर हुआ था, 5वीं सेंचुरी। अब सेंचुरी और सदी मेरे ख्याल में एक ही होती है। सेंचुरी जो है हम इंग्लिश में, और सदी जो है हम अपने शायद उर्दू में कहते हैं। तो भाई ये उस टाइम पे डिस्कवर किया गया था। तो भाई ये सेहत के लिए मशहूर हुआ था 2000 में। इससे पहले लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं आते थे, मुतवज्जा नहीं थे, लेकिन सन 2000 से यहाँ लोग काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हो गए। ये किला नुमा शहर है, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, और ये शायद कोई कैसल है जहाँ मेरी एंट्री हो रही है। अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ का व्यू क्या है।
तो भाई यहाँ आने के 3 तरीके हैं। आप अल्बानिया से मतलब यहाँ बाई रोड भी रास्ते मिलते हैं इस कंट्री के साथ, और दूसरा मैं तो अल्बानिया से आया हूँ जैसा आपको पता है, और दूसरा यहाँ पे भाई क्या कहते हैं जहाज़ से भी आ जा सकता है, और शिप से भी लोग आते हैं। मुझे सारे रास्तों से आया, मैं लैंड हूँ, बाई लैंड जाऊँगा मैं बाई एयर। यहाँ मुझे काफ़ी लोग मिले हैं जो शिप से आए हैं, और इसके साथ मिलते जुलते शहरों से, क्योंकि ये शायद मिडल में पड़ता है, इसके साथ कोई बॉर्डर नहीं है इस शहर के साथ। तो मैं आपको प्लान बताऊंगा एंड ऑफ जर्नी कि कैसे आप इसका प्लान जो है वो सेट कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई अल्बानिया में कैसे आप अपना ट्रिप जो है वो प्लान कर सकते हैं, कितने कितने दिन आपको कहाँ कहाँ रुकना चाहिए। कुछ जगह ढूंढता हूँ जहाँ बैठ के मैं आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो भाई मैं पहुँच चुका हूँ अब यहाँ के व्यू पॉइंट पे, शायद और मज़ीद ऊपर जाना है, बैठे हुए हैं लोग। तो पहले आपको यहाँ से व्यू दूँ। ये है मोंटेनेग्रो का फ्लैग जो बिल्कुल साइलेंट पड़ा हुआ है। तो भाई यहाँ से व्यू कुछ इस तरह का मंज़र पेश करता है। ये सामने मोंटेनेग्रो का झंडा है और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। अगर आप गल्फ़ कंट्रीज से जा रहे हैं तो अल्बानिया से मोंटेनेग्रो का वीज़ा लेने के लिए आपको पासपोर्ट, वीज़ा, आईडी कॉपी, एनओसी लेटर, 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट, ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल बुकिंग और रिटर्न टिकट चाहिए। दे आर वेरी गुड ऑन क्लाइंबिंग एंड दे आर वेरी फास्ट। तो भाई हम पहुंच चुके हैं। वो देखें नीचे कैसल कितना दूर है, वो देखें। तो ये बकरियां यहाँ पे देखें ज़रा कहाँ कहाँ चढ़ी हुई हैं पहाड़ों के ऊपर, आप देख सकते हो। तो भाई मेरे बैक में व्यू चेक कर लो कैसा है। 2 बैटरियाँ अभी तक ख़त्म हो चुकी हैं मेरे कैमरे की, क्योंकि इसकी वजह से देख लो भाई क्या ख्याल है। आई थिंक वी लेफ्ट। तो भाई यहाँ पहुँचने के लिए मुझे 2-2.5 घंटे अब तक लग चुके हैं। मैं पहले जहाँ खड़ा था वो था कैसल जो बहुत नीचे रह गया। तो भाई 3 घंटे से हम लोग जो है ना कर रहे हैं हाइक वॉक। तो लेट्स गो। तो भाई ये है लास्ट व्यू पॉइंट। आगे मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ पहाड़ी के, शायद वहाँ से ये व्यू नज़र ना आए, तो मैंने सोचा चलो, क्योंकि मैं जा रहा हूँ अब इस तरफ और व्यू रह गया मेरे। अगर आपको पहाड़ों से प्यार है तो थोड़ी बहुत हाइकिंग इस एरिया में ज़रूर कीजिएगा। तो भाई पानी पीते हैं फिर चलते हैं। वो भाई साहब तो पता नहीं कहाँ चले गए। तो मैं इस वक्त बैठा हूँ यहाँ पत्थरों पे। ये मेरा साइड व्यू है। हाय। तो भाई कैमरे के साथ थोड़ा मुश्किल होता है बैग को कवर करना, लेकिन मैं चलो जी वो भाई साहब को ढूंढने तक अब स्टॉप नहीं करेंगे। तो भाई चलें बात करते हैं अल्बानिया के बारे में। मैं आपको बता दूं कि आपने क्या करना है।
सबसे पहले तो भाई आपने 3 महीने पहले प्लान करना है अल्बानिया का ट्रिप और टिकट बुक कर लेनी है विज़ एयरलाइन से। लेकिन मेक श्योर कि आपका वीज़ा 1 साल पुराना होना चाहिए यूएई में और 6 महीने बाकी होने चाहिए। और अगर पुराने वीज़े आपके हैं तो सबको एक पीडीएफ में फ़ोल्डर बना लीजिएगा, जितनी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी पूरी की पूरी बना के तो आपने जो है अप्लाई करना है। उसके लिए क्या चाहिए आपको, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा लगा दें, पुरानी पड़ी हुई है उनको भी अटैच कर दें, पीडीएफ पड़े हुए हैं तो, एनओसी लेटर, पासपोर्ट, वीज़ा, आईडी कॉपी और ट्रैवल हिस्ट्री बोल दी आपको, सच ट्रैवल प्लान। उसका तरीका, मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं यार ट्रैवल प्लान भेज दो। यार गूगल इज़ बेस्ट ऑप्शन, आप वहाँ जाके अपना ट्रैवल प्लान भेज सकते हो, वरना किसी ट्रैवल एजेंसी से कॉन्टैक्ट कर लो। होटल बुकिंग booking.com से आप ले सकते हो और इस तरह करके आप अपना वीज़ा अप्लाई कर लो और वहाँ से मोंटीनेग्रो आ जाओ। वीडियो दोनों की बनी हुई है वीज़े के लिए, कैसे कैसे वीज़ा अप्लाई करना है, कैसे कैसे लेना है, वो आप जाके देख सकते हो। सिंपल प्रोसेस है, आप खुद से कर सकते हो, किसी को कोई पैसा देने लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, एक तो हो गया ये ऑप्शन। दूसरा, आपने ट्रैवलिंग कैसे करनी है, कितने दिन के लिए आप जा रहे हो। तो भाई एक दिन आप तराना उतरोगे और नॉर्मली आप दोपहर तक पहुंच जाओगे मेरे ख्याल में, या शाम तक पहुंच जाओगे, तो वो रात आप सिटी सेंटर एक्सप्लोर कर सकते हो। दूसरे दिन आप तराना के बाकी एरियाज़ को भी, जहाँ पे वो केबल कार है, वहाँ जा सकते हो। इस तरह की चीज़ें करके 2 नाइट्स मोर देन इनफ फॉर तराना। उसके आप बाद सीधा बेरात चले जाओ। बेरात में आप चाहो तो ओवरनाइट रुक सकते हो, वरना दिन में घूम के, कोई इतना बड़ा शहर नहीं है, तो आप आगे जा सकते हो जोकास्टर। रात जोकास्टर में रुको और सुबह वहाँ से सिटी सेंटर घूमो, कैसल घूमो और सीधा सरांडे के लिए निकल जाओ। सरांडा जाओगे जहाँ से ग्रीस सामने नज़र आता है, ग्रीस का बॉर्डर। वहाँ से काफू आइलैंड, अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है तो आप क्रॉस कर सकते हो बाय शिप, वहाँ जा सकते हो ग्रीस, यूनान में। और दूसरा ये है कि वहाँ से आगे आप जा सकते हो हिमारा। हिमारे के अंदर आपने एक रात एक दिन ज़रूर रुकना है, क्योंकि उसके बीच बहुत खूबसूरत है, पानी बहुत अच्छा साफ़ फ्रेश, तो एक दिन रखिए उसमें। फिर वहाँ से आप जा सकते हो शकोदरा। शकोदरा के बाद आप जा सकते हो वोलबोर्ने और थेफ। ये वहाँ की विलेजेस हैं जहाँ मैं तो नहीं जा सका, क्योंकि मैं वीज़े के चक्कर में तराना आ गया था, फिर यहीं रहा हूँ। वहाँ से सीधा मोंटीनेग्रो आ गया हूँ। अगर मुझे पता था ये इतनी बड़ी कंट्री नहीं है तो मैंने भाई वोलबोर्ना हो के आना था, 1-2 दिन रुक के आता। लेकिन चले, नसीब की कहानी है सारी, हमारे इख्तियार में तो चीज़ें थोड़ी होती हैं, जो दाना पानी लिखा है वो तो खाना होता है ना भाईजान। तो ये थी भाई स्टोरी, इस तरह से करके आप ट्रिप प्लान कर सकते हो। हाय, हाउ आर यू गाइस? Very good. थैंक यू। तो भाई कितने दिन हो गए, 2 दिन तराना में, 1 दिन बारात, 1 दिन जोकास्टर, 1 दिन सरांडा, 1 दिन हिमारा, 6 दिन, मतलब 10 दिन का ट्रिप लेके आओ यार, कमाल है। और अगर मोंटीनेग्रो आना है तो आते ही वीज़ा अप्लाई कर दो और 12-13 दिन का ट्रिप रखो, फिर 10 दिन में वीज़ा नहीं देंगे वो आपको। तकरीबन 9 वर्किंग, 7 से 9 दिन वो ले जाते हैं छुट्टियों के साथ। मुझे 9 दिन के बाद मिला था, वो भी मैं वैसे ही चला गया था। पहले दिन कॉल किया, 8वें दिन उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। 9वें दिन मैं गया हूँ कॉन्सुलेट, उसने मुझे बताया कि आपने कॉल किया था कल। मैंने कहा यस। उसने बोला 1 घंटे बाद आओ। 1 घंटे बाद उसने कहा प्रूफ, ठप्पा मार के दे दिया, तो मैं बस लेके सीधा इधर आ गया। तो ये था भाई प्लान ट्रिप का, इस तरीके से आप ट्रिप प्लान कर सकते हो। वहाँ से तो कुछ नहीं बैकग्राउंड में नज़र आ रहा, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप जाके मेरी वीडियोस देख सकते हो, उसमें पूरा कुछ मेंशन है, तो फॉलो करके मेरे ट्रिप को आप अपना ट्रिप प्लान कर सकते हो, पैसे भी बचा सकते हो। सारे हॉस्टल किराए मेंशन हैं, चीज़ें मेंशन हैं, घंटे मेंशन हैं, तो काफ़ी सांस फूल चुकी है।
दोबारा आपको ऊपर जाके बात करूँगा। तो भाई पॉइंट कुछ ऐसा आया है कि मैं दिखाए बगैर नहीं रह सका। ये देखें यहाँ चश्मा चल रहा है अलोंग द पहाड़ी पे, और मैं एक ऐसी जगह पहुँच चुका हूँ जो बहुत ही हाइट पे है। मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ क्लोज कि चश्मा कैसा है, क्योंकि ये देखें ये पानी नीचे जा रहा है, वो देखें कहाँ से आ रहा है। तो भाई मैं हूँ इस वक्त जंगल के अंदर। कुछ थोड़ी सी चीज़ें आपसे डिस्कस करनी थी। मैं आपको बता दूं कि भाई जो भाई साहब मेरे साथ हैं ना, वो भाई साहब काम करते हैं जो लोग चोरी छुपे क्रॉसिंग करते हैं बॉर्डर्स की और चले जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ के अंदर। तो ये भाई साहब इटली से हैं और देख सकते हो भाई चश्मा वहाँ से मेरे ख्याल में क्लियर वाटरफॉल है। तो भाई वो ये कह रहे थे कि जो लोग वहाँ जाते हैं, एक तो जिनकी उम्र छोटी होती है 12-15 साल, उनको वो लोग रख लेते हैं, या उनको कागज़ वगैरह जो है सलम वगैरह वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, हो जाता है उनका। बाकियों को वो जो लोगों को उनका ख्याल होता है कि ये लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पैसे कमाने के लिए हमारे मुल्क में आए हैं, उनको वो लोग वापस भेज देते हैं। तो जब भी आपने वहाँ जाना है, आपकी स्टोरी में दम होना चाहिए कि आप लोग उन लोगों को कन्विंस कर सको कि भाई हम यहाँ पे क्यों आए। आपको कोई मसला है, जान का मसला है, कोई और ऐसा प्रॉब्लम है कि जो उनको कन्विंस कर सके, तो आप कर सकते हो। तो भाई ये जंगल है जहाँ मैं घूम रहा हूँ, और आगे का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। तो ये है जी ऊपर का व्यू, पता नहीं कितना ऊपर अभी जाना है। ये हैं साइडें, जंगली फल लगे हुए हैं यहाँ पे। तो भाई 8 बजे शुरू की थी, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 5 घंटे लगे हैं भाई मुझे स्टॉप पे पहुँचते हुए। और ये है व्यू, और यहाँ पे रोड है, यहाँ से हिच हाइकिंग करके वापस जाऊँगा। तो 5 घंटे की हाइक के बाद भाई ये नज़ारा, मैं कैमरा चेंज करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो आप, मैं हूँ इस वक्त इस पहाड़ी की ऑलमोस्ट बुलंदी पे। उतना ऊपर जाने की हिम्मत नहीं है अब, और ना ही शायद वहाँ पे ट्रैक है। और वहाँ पे जिप लाइन भी, अगर जिप लाइन लेनी हो तो वो भी आप ले सकते हो यहाँ आके। तो भाई भूख लगी हुई है बड़ी शदीद किस्म की। हमने ऑर्डर किया है लेमन जूस और इसके साथ ग्रीक सलाद। तो सलाद खाएंगे, जूस पिएंगे, और यहाँ से हिच हाइकिंग करके हम लोग वापस जो है कतौर टाउन पहुँच जाएंगे, ओल्ड टाउन जो है। तो भाई इसकी कॉस्ट हमें पड़ी है 14 यूरो दोनों की। 7 यूरो हमारी जो है खाने की कॉस्ट आई है, और यहाँ से पानी की बोतल जो है मुझे 3 यूरो में मिली है। इतना एक्सपेंसिव है पानी यहाँ पे। तो भाई हिच हाइकिंग कर रहे हैं, सो हमको डी स्टॉप द लेफ्ट, द स्टॉप एंड लेफ्ट। I don't know. आई थिंक दे गोइंग टू स्टॉप देयर और नो No, it's continuing. या
आई थिंक दे चेंज देयर माइंड। Yeah. तो भाई हिच हाइकिंग हो रही है, एक गाड़ी रुकते रुकते निकल गई। I was taken in the end by a guy from Poland, Okay. Polish, ओके who was super nice. And Okay. he drove me till Sarajevo, हम्म which was about over 100 kilometers. राइट। It's been super nice. तो भाई वहाँ सलाद खाया और एक लेमन जूस पिया जिसमें मीठा बिल्कुल नहीं था, बहुत अच्छा था। इतनी लंबी 5 घंटे की वॉक के बाद आई थिंक दैट वाज द बेस्ट ऑप्शन एंड द प्राइस वाज ओनली 14 euro for both of It us. was very good. Yeah, it's a very good price, but water was very expensive. So doesn't matter. I don't feel that much because the other hand they charge us very less, right? Yeah. तो पानी महंगा हुआ, बाकी चीज़ें सस्ती थी, तो चलो I don't mind. It's okay. I need water because I will drink like if we get the ride so quickly back, but if not then I can finish half of that. तो भाई हिच हाइकिंग चल रही है, देखते हैं कोई हमें लिफ्ट देता है कि नहीं इन मोंटीनेग्रो। वी आर ट्राइंग टू गेट राइड ऑन इट रोड। सो नोबडी। तो जी एक और गाड़ी आई है, देखते हैं, एक की बजाय दो हैं। इफ़ दे कैन गिव अस अ नो, वन इज वेंट ऑन अदर वे। नो नो Hey, hey, hey. या कैन यू क्लोज लिटिल बिट प्लीज? Yes, yes. Thank you so much. What is your name, boss? Marco. Marco. I am Marco too. Oh, Ah, nice to meet so you. we have two Marcos now. Where are you from? I'm from. Yeah. I'm Italian, he's from Pakistan. Ah, cool. And you came with some plan to hike and Yeah, we did hike from there to here, and we said let's see we can get hitchhiking or no. And luckily you stopped for us. So thank you so much. yes, it's always pleasure. I have opportunity to meet some amazing people. Thank you to- so much. It's really In this appreciated. way, so Yeah. You live around here? I'm from Podgorica. I'm from Uh-huh. Podgorica, Podgorica, but I'm a musician. Oh, very so nice. I have some gigs on the seaside. They have always light on this kind of caves. So it's like for beauty or there's some reason No, it's for beauty? act of nature. You know? Ah, okay. Yeah, I was looking because I'm living in front of that bay, so it was really nice to have that kind of lights from the top of mountain. I don't know. भाई हमें ये राइड मिल गई थी 5 मिनट वहाँ खड़ा होने के बाद। तो ये सीधा जो है इनको वहीं पे से गुज़रना है जहाँ पे हमारा हॉस्टल है। तो लकीली ये ट्रिप बड़ा शानदार रहा। भाई साहब से गपशप करके बहुत मज़ा आया। ये भी हिच हाइकिंग मतलब ये है कि हमारी तरह ये भी बैकपैकर हैं, काफ़ी कंट्रीज़ घूम चुके हैं। बहुत अच्छा कन्वर्सेशन रहा इनसे। Fighting from their rights, but Yeah. they have everything here. But it's always like they want this to be Serbia. I don't know what's happening, but it's strange, you know, because This is now. happening everywhere. Like I was in Bosnia and I Yes, was yes. also in the Srpska Republic. And somebody told me that they feel more Serbian than in Serbia. तो भाई मुझे ये वीडियो यहाँ काटनी पड़ी क्योंकि कन्वर्सेशन रेसिज्म पे शुरू हो गया था, जो मुझे पसंद नहीं है। मेरे लिए सब बराबर है। तो भाई हिच हाइकिंग ख़त्म हो गई है, वापस आ गया हूँ अपने हॉस्टल। तो आपको हॉस्टल दिखाता हूँ कैसा है। तो भाई 8 बजे निकला था। सॉरी, What an adventure. या इट वाज अ नाइस एडवेंचर। So it's like we spend 7 hours almost. Like 8 o'clock if we left, so now it's going to be 3. So how many hours is that? 4 and 7 hours? Yeah? 7 hours. तो भाई It's time to आज rest. का दिन लोकेशन में दिखाता हूँ, हॉस्टल दिखाता हूँ, प्राइस बताता हूँ, सारा कुछ देख लो भाई। पहले भी बताया था, फिर बता देता हूँ। दिस इज़ माई हॉस्टल पुपा। लुक लाइक दिस। और लोकेशन देख लो भाई कैसी है, बिल्कुल वो ओल्ड टाउन है पूरा, वो भी घुमाऊंगा मैं आपको आज। और ये बे है और ये हॉस्टल है। 25 यूरो पे किए। Toda esa cosa, ¿no? हेलो En ese sentido sí Hello. está bueno.
Hello. How are you? I am fine. What is Just your name? Pablo. Pablo. Pablo, with B, like Pablo Pablo. Escobar or Pablo Picasso. ओके और तो ये भाई मेरा हॉस्टल है, देख लो ये किचन है। किचन एक और भी है, मैं नहीं गया अभी तक। तो अंदर ये इस तरह से है। ये वॉशरूम है जेंट्स का, लेडीज़ का अलग है। ये दो टॉयलेट, 2 शावर। देख सकते हो। तो इस तरह करके ये टॉयलेट है। ये मैं हूँ। अभी आपको दिखाता हूँ रूम। तो भाई चलें आपको मैं अपना रूम दिखाता हूँ। हॉस्टल के रूम इसी तरह के ही होते हैं। मैं हॉस्टल में रहना इसलिए पसंद करता हूँ कि भाई हॉस्टल में बंदा बोर नहीं होता। तो ये है जी मेरा बेड, कुछ इस तरह का है। तो जी इस हॉस्टल में मैंने पे किया है जी 25 यूरो। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा ट्रिप अर्ली प्लान करें। यही हॉस्टल जिसका मैंने 25 यूरो पे किया आपको 8-10 यूरो में भी मिल सकता है। तो इसमें नीचे जो है कैबिन है जिसके अंदर आप अपना बैग रख सकते हैं। लॉकर है जो छोटा सा, उसके अंदर जो है आपका शोल्डर बैग बड़ी आसानी से आ सकता हूँ। कल आपको नई प्लानिंग के साथ फिर जो भी है बात होगी कल। आज के लिए इतना है। अल्लाह हाफिज़। लव यू गाइस, टेक केयर। और दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया। इस हॉस्टल का मैंने पे किया पर डे 25 यूरो।